بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب، معزز وزرائے کرام، معزز سامعین، السلام علیکم. بے حد خوشی ہو رہی ہے مجھے اس پروگرام کے اجرا ایک بہت ہی عمدہ پروگرام شروع کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی سرپرستی میں پنجاب گورنمنٹ نے، اور میں اس پر جتنی بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر سکوں میں سمجھتا ہوں اتنا کم ہے. ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے ان تمام اراکین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اہلکاروں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا. اور ابھی جو تفصیل بتائی ہے ہمیں سیکرٹری ہاؤسنگ ہے، بہت عمدہ گفتگو کی انہوں نے، اور جو اس کی ڈیٹیلز بتائی ہیں میں بہت امپریس ہوا ہوں. مریم نواز شریف نے مجھ سے بھی اس اسکیم کا ذکر کیا تھا جب یہ اسکیم ابھی بننے جا رہی تھی، تو مجھے اس وقت بھی بہت خوشی ہو رہی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوام کا پیسہ ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ عوام کا پیسہ عوام ہی پر خرچ ہونا چاہیے، یہ اس کی بہترین مثال ہے. یہ عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے جو کہ عوام پر خرچ کی جا رہی ہے. اور کتنی اچھی بات ہے، کتنی عمدہ بات ہے کہ قرض بھی دیا جا رہا ہے اور کوئی سود اس پہ وصول نہیں کیا جا رہا ہے، ایک پیسے کا بھی نہیں. یہ اسکیمیں جو ہے یہ میرا دھیان چلا جاتا ہے بہت دور. میں تو 1947 سے شروع ہوں گا کہ اس میں 75 سال ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس ملک کے اندر کام کیا جاتا اور کام کرنے دیا جاتا اور جو پبلک کے جو نمائندے ہیں، ان کی جو حکومتیں بنی ہیں، ان کو بھی اگر کام کرنے دیا جاتا تو آج اس ملک کے اندر ایک بھی شخص ایسا نہ ہوتا جو بے گھر ہوتا. یہ بالکل میرا ذاتی ایک مشاہدہ اور تجربہ ہے، اس کی بنا پہ میں یہ بات کر رہا ہوں. 75 سالوں میں آج ہماری بہت بڑی پاپولیشن گھروں سے محروم ہے. ابھی میں ان کے فرد کے جذبات کو دیکھ رہا تھا جو ابھی یہاں پہ میری بہنیں آئی ہیں، بیٹیاں آئی ہیں اور بھائی آئے ہیں جن کو مجھے لگا ہے ان کے چہرے پہ کتنی خوشی تھی. ان میں سے کچھ پرائیویٹ جابس کرتے ہیں، کچھ سرکاری جابس کرتے ہیں، تھوڑی تنخواہوں کے مالک ہیں. زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو 3 مرلے کا ہے، تو 5 مرلے کا ہے، کوئی 10 مرلے کا ہے. اس پہ بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آج کل کنسٹرکشن اتنی مہنگی ہے، آپ جانتے ہیں. ایک کمرہ بھی بنانا ہو تو میرا خیال انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے. یہ کام ہم نے بہت پہلے شروع کیا تھا. میں نے ابھی 1947 سے بات کی ہے، 75 سال ہو گئے ہیں. آپ زیادہ دور نہ جائیں. آپ میرے پہلے دور
की तरफ चले जाएं। जब मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना तो इस तरह की हमने बहुत सारी स्कीमें और भी शुरू की, लेकिन चंद ही महीनों के बाद, 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद हमें फारिग कर दिया गया। फिर आए, फिर आधा वक्त ये भी अपना पूरा नहीं किया तो फारिग कर दिया गया। फिर आए तीसरी मरतबा, मुश्किल से भी आधा वक्त पूरा किया तो फिर फारिग कर दिया गया। क्यों? कितने अच्छे अच्छे काम मुल्क के लिए हो रहे थे। मेरे दौर को भी मैं याद करता हूँ तो मैं कहता हूँ अगर वो मोमेंटम जारी रहता, जो 1990 में हमने शुरू किया था, जब पहली मरतबा अल्लाह के फजल व करम से मैं वज़ीर आज़म बना था, तो आज पाकिस्तान इतना खुशहाल मुल्क होता कि दुनिया रश्क से इस मुल्क की तरफ देख रही होती। लेकिन बदनसीबी है कि हम 2 कदम आगे, 4 कदम आगे जाते हैं, 8 कदम पीछे चले जाते हैं। और फिर मुस्लिम लीग नून अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान की तामीर करती। मुझे बताएं जरा, ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बताएं कोई और कौन सी ऐसी हुकूमत है, जमात है जिसने पाकिस्तान पे अपनी हुकूमत की हो, उसने इतना काम किया हो जितना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। बताएं, मैं सुनने को तैयार हूं। अगर सबसे पहले मोटरवे बनी तो किसके दौर में बनी? मुस्लिम लीग नून के दौर में बनी। अगर पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेकाम आया तो किसके दौर में आया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में आया। अगर रुपया स्टेबल रहा 104 पे 4 साल उसको हमने बांध के रखा, 104 रुपए, किसके, कौन सा दौर था वो? मुस्लिम लीग नून का दौर था। मुल्क के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग को खत्म किया तो किसने किया? बोले बोले बोले, दिल से बोले, जरा बात बताएं, बोले। मुस्लिम नून ने किया। दहशतगर्दी अगर खत्म की तो किसने दहशतगर्दी खत्म की? मुस्लिम लीग नून ने खत्म किया। अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया तो किसने बनाया? मुस्लिम लीग नून ने बनाया। और पाकिस्तान के अंदर इतना वहां हमने, जो मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, मोटर रेस के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो है वो उस जमाने में हमने येलो कैब की, आज भी देखिए येलो कैब को खत्म कर दिया गया, उस मनसूबे को खत्म किया। अगर जारी रहता तो आज एक मुहज़्ज़ब सवारी होती यहाँ गाँव के पास। लोग जैसे कि दूसरे मुल्कों में मुहज़्ज़ब सवारियाँ मिलती तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल होती। इस मुल्क के अंदर सबसे पहली ऑरेंज लाइन अगर बनी है तो किसने बनाई? मुस्लिम लीग नून ने। जाए देखे जाके, वो ये बताए जो बिलियन की बात करते थे, 1 अरब ट्रस्ट, जो 350 डैमों की बात करते थे, जो वहां पे अपना न जाने कौन कौन से बड़े बड़े मंसूबे बताया करते थे, इस तरह की एक भी ऑरेंज लाइन पूरे मुल्क के अंदर को है? मुझे बताएं जो मुस्लिम लीग नून ने बनाई। क्या बातें करना कुछ और होता है और झूठ की सियासत कुछ और होती है। आज पंजाब में अल्लाह के फजल करम से अगर यहाँ पे जो है वो बिजली सस्ती हो रही है तो मैं मरीम नवाज शरीफ साहब को, उनकी हुकूमत को बहुत दिल की गहराइयों से मैं शाबाश देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब को भी मैं बहुत शाबाश देता हूँ। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो बिजली को सस्ता करें और पाकिस्तान को इस गिरदाव से बाहर निकालें। हम आए को खुदा हाफिज कहते हैं और दूसरे हमारे मुखालिफिन आए को फिर दोबारा पाकिस्तान ले आते हैं। और वो IMF पाकिस्तान के अंदर जो चाहती है वो कहती है कि ये नहीं करना, हुकूमत को करना पड़ता है, ये मानना पड़ता है। लेकिन हमने
IMF کو ہاتھ ملا کے کہا اچھا تھینک یو ویری مچ، اب آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. اور پھر جب میری حکومت کو ختم کیا گیا تو دوبارہ IMF پاکستان آ گیا. کبھی سوچا ہے، کبھی دیکھا ہے، کبھی آپ نے باتوں پہ کبھی غور کیا؟ نہیں کیا. ورنہ ان کی مجال نہ ہوتی. یہ کہتے کہ ہم پنجاب پہ یلغار کرنے آ رہے ہیں، ہم پنجاب پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں. یہ پنجاب کے اور پنجاب کا تم آپس میں لڑائی کرنا چاہتے ہو اور یہاں پہ کوئی خون خرابہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا عزائم کیا آپ کے؟ مریم نے بہت اچھی طرح سے یہ ساری بات کی کہ کیا کبھی وہاں سے یہ آپ کو کوئی ہدایت ملی ہے کہ آپ میرا گھر اسکیم اپنی اپنا گھر اسکیم آپ شروع کریں KPK میں؟ آپ وہاں پر بھی اپنا جو ہے وہ یہاں پہ کسان کارڈ شروع کریں، ہیلتھ کارڈ شروع کریں. آپ کی ساری ویلفیئر اسکیم وہاں پہ بھی آپ، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. علاج معالجے کے لیے وہاں کے KPK کے لوگ پنجاب میں آتے ہیں، ہم انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں جو علاج کے لیے آتے ہیں. آپ اپنے صوبے کے حکومت والوں سے پوچھیں، آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے ہمارے صوبے کے لیے KPK کے لیے کیا کیا ہے. آج کون سا وہ تیر چلا کے تو تیر مار کے آج پنجاب کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے کیا وہاں پر؟ آج ان کی حکومت سے پوچھے. وہاں تو ہسپتالوں میں علاج کے لیے فیسلٹیز نہیں ہے، بیسک فیسلٹیز نہیں ہے. ورنہ یہاں لوگ آگے یہاں علاج کرواتے ہیں. کوئی اس کی طرف کوئی دلچسپی نہیں ہے ادھر. وہ بجٹ بھی کہاں ہے؟ 1 ارب درخت جو لگانا تھا کدھر ہے؟ ہمیں بتایا جائے کہاں ہے. اور اتنی بڑی بڑی جو اسکیمیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ شروع کریں گے، کتنے وہ سارے. اور پھر آتے ہیں یہاں پہ آنسو گیس کے شیڈ لے کر آتے ہیں تاکہ پولیس کے اوپر برسائے جائے اور ان کو زخمی کیا جائے، ان کو جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا جائے. اور پھر پنجاب کے اندر ایسے جیسے کوئی پتہ نہیں، خدا نہ خواستہ پرانے زمانے میں سینٹرل ایشیا سے پنجاب کے اندر جو آتے تھے حملہ آور لوگ آتے تھے اور یہاں آ کے تو قبضہ کرتے تھے آ کے. تو یہ کام کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، یہ کام نہ تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے، کبھی نہیں کر سکو گے. آپ دیکھنا چھوڑ دو. اگر تم وہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے عوام کے خدمت کا کام کرو. وہاں پہ غریبوں کی دیکھ بھال کرو، ان کو گھر دو، ان کو ٹریکٹر دو، ان کو یہ جو ہے ہیلتھ کارڈ دو، ان کو کسان کارڈ دو. آج مریم نے ماشاءاللہ یہاں پر ٹریکٹروں کے لیے، کسانوں کے لیے جو ہے وہ ایک اسکیم بنائی. لاکھوں لوگوں نے ٹریکٹروں کے لیے اپلائی کیا. کتنے لوگوں نے؟ 10 لاکھ لوگوں نے ٹریکٹروں کے لیے اپلائی کیا ہے. اور پھر یہ جو میرا گھر اسکیم کے لیے 5 لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ اپلائی کیا ہے. ابھی شہباز شریف صاحب نے بھی 50 ارب روپے دیا بجلی کے حوالے سے، اس کے ریٹ کو کم کیا جائے. اور پھر پنجاب نے کتنا دیا تھا؟ آپ نے 55 ارب روپیہ 55 ارب روپیہ دیا بجلی سستی کرنے کے لیے 2 مہینے کے لیے، اگست سپٹمبر. اور میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ منصوبہ بھی ہے کہ آئندہ کے لیے بجلی کو سستا کرنے کے لیے ہم سولر پینلس کی طرف کریں گے تاکہ یہ بڑی ختم ہو جائے. اور لیکن اس میں ابھی وقت لگے گا اور پیسہ بھی بہت درکار ہے. دوسرا دے دیں. تھینک یو. تو وہ بہت ایک بڑا منصوبہ ہے. دیکھیں اگر یہ 50-60 جو ابھی بجلی کے لیے دیا ہے، یہ اگر اس کے لیے نہ دینا پڑتا، نہ دیا جاتا، اس کے بغیر ہی کام چل جاتا، تو یہ 50-60 ارب روپیہ جو ہے یہ اس اسکیم کی طرف چلا جاتا.
اس चीज की तरफ या किसान कार्ड की तरफ जा रहा है। और अभी हमारे ने आपको बताया है कि इंशाल्लाह इन 5 सालों में अल्लाह के फजल व करम से ये 5 लाख घर इंशाल्लाह उसके लिए कतरे देंगे 5 लाख लोगों को। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं एक की बात कर रहा था, मुझे याद आ गया इससे, वो 50 लाख घर कितने हैं? पूछे कोई भाई, पूछे जो भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, पूछे कितने वो घर जो इतने बड़े वादे किए थे, कौन सा इफाद किया आपने वादा, कौन सा पूरा किया? पूछे आप मुझसे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ नंबर 1। और फिर एहतजाज रहा, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे, उनका काम ही एहतजाज। सड़कों पे, सड़कों हमने मोटरवे से एहतजाज के लिए नहीं बनाई थी। प्राइम मिनिस्टर था तो कहा गया, जब इस्लामाबाद में 4 महीने वो जो अपना उन्होंने शुरू किया हुआ था काम, तो उसको उन्होंने 4 महीने, आपको पता है क्या 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 अल्फाज इस्तेमाल किए? हम नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस में था इस्लामाबाद में, मुझे मेरे चीफ मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा देखिए बाहर बहुत शोर शराबा है और खतरा है और ये है, तो हम हेलीकॉप्टर में यहाँ से चलते हैं, आप लाहौर चले जाए या कहीं और चले जाए। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे जमाने में हम, ऐसे वक्त में मैं इस्लामाबाद को छोड़ के लाहौर चला जाऊँ? आप मुझे कैसा मशवरा दे रहे हैं? तो मुझे कहते हैं कि ये देखे ना, आपको कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ को उसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के जो आज जेल में है। और मैं और फ्रांस में हूँ आईजी, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा। वो चीफ सेक्रेटरी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो फ्रांस, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम सबको जेलों में डालूंगा, तुम सबको मैं वो सलूक करूंगा जो तुम याद रखोगे। इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो, मत बोला करो। आज से सीखो, आज से जो करोगे फिर बाद में भरोगे, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहते ना कि as you sow, so shall you reap। तो इस दुनिया में जो करोगे सामने आएगा, एक दिन सामने आएगा। मैं तो आज कोई तकरीर के मूड में नहीं था, और आप जानते हैं कि मैं आजकल जरा तकरीर भी कम करता हूँ, लेकिन ये मैं बहुत सारी चीज़ें तो आज गिनवा भी नहीं रहा यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ना, ये ऐसे अनासर को कि सख्ती के साथ जो ना वो डील करना चाहिए। और एक मुझे बताएं, वो जो 5 जजों ने मेरे खिलाफ में फैसला किया था कि वज़ीर आज़म को निकाल दो, 25 करोड़ का एक वज़ीर आज़म है, उसको 5 जज बैठ के निकाल रहे हैं। और किस बिना पे कि तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। और कितनी तनख्वाह? 10,000 दिरहम। तो लिहाजा तुमने उसको नहीं लिया, तुमने उसको अपने बुक्स में शो नहीं किया, लिहाजा तुम्हारी छुट्टी, तुम फारिग। 25 करोड़ के अवाम को 5 जज बैठ के इस बना पे फारिग करे, इस बना पे। जरा आप देखें तो सही ना कि वजह फारिग करने की क्या तनख्वाह नहीं थी बेटे से। ये नहीं कि मैं आपसे तनख्वाह नहीं ली, या आपसे को मैं 25 जो है 10,000 अरब लेके मैं गायब हो गया। मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वो भी 10,000 दिरहम। ये बताएं कि कितना बड़ा जुल्म है। और फिर जो ये जो थे वहाँ उस जमाने के चीफ जस्टिस साकिब निसार, उसकी ऑडियो लीक मेरे पास आज भी मौजूद है।
हैं कि हमने तो भाई नवाज शरीफ को और मरीम को जेल में रखना है और इमरान खान को लाना है। और फिर मैं उन भेड़ बकरियों से पूछता हूँ जिसका मैंने भी नाम लिया है कि आपने सुनी नहीं कि साकिब साहब ने क्या कहा है? अगर सुन लो तो बेहतर आप भेड़ बकरियों वाला काम बंद कर दोगे। ये तो हाल था, किया कराया कुछ नहीं उन्होंने, और बर्तन भी सारे तोड़ दिए। कोई मैं तो आपके पास वहां गया था, बड़ी वाला भी गया था कि आओ मेरे भाई चलो मिलके मुल्क की खिदमत करते। और वहां पे 1 घंटा मैंने आपके साथ बैठा है, वो 1 घंटा तो मैंने आपके साथ मीटिंग की, लेकिन वो आपने मुझे कहा कि हाँ जी बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप लंदन चले गए और धरने का प्रोग्राम बना के वापस आ गए और वहाँ पे पाकिस्तान में आपने धरना शुरू कर दिया। ये धर्मों की सियासत ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखाया जो मैं 75 साल की भी बात की है। मैंने इन्हीं धर्मों ने और इन्हीं लोगों ने, अगर नवाज शरीफ देखें जो है वो पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा काम कर रहा था, सस्ती बिजली, दिनदारी सस्ती की बिजली, गैस सस्ती थी, 10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी, घी सस्ता था, चीनी सस्ती थी, गोश्त सस्ता था, गरीब आदमी का गुजारा होता था, पैसे मिलने के बाद बच भी जाते थे। और मुल्क तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान की मिसाल दुनिया भर के लोग देते थे कि इतनी तरक्की कर रहा है। तो फिर मुझे निकालने की क्या जरूरत थी? भाई बताओ, ये पाकिस्तानी अवाम साहब, ये आपका भी इसमें कसूर है, आप भी जिम्मेदार हैं। मैं आप ये ना समझे कि आप जिम्मेदार नहीं, आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं। आपने कभी पूछा कि इतने अच्छे काम हो रहे थे? बताओ मुझे, सब बताओ। उस वक्त महंगाई का कोई नामो निशान था जब नवाज शरीफ दरिया था? तो फिर क्यों निकाला? उसके बाद फिर आज ये दिन आया कि आज वो 1500 रुपए के जो महाना बिजली के बिल होते थे, आज 20 हजार रुपए के हो गए। कभी पूछा अपने आप से? पूछा कभी आपने? नहीं पूछा। बस इसी बात का अफसोस है कि अगर आप इन चीजों का नोटिस नहीं लेंगे तो फिर पाकिस्तान के हालात खुदा न खास्ता इसी तरह के रहेंगे। वो जज फैसला लेके कहां चले गए? पूछा कभी किसी ने उनको कि अगर आओगे बैठो यहाँ पे, आप बताएं कि आपने एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को 25 करोड़ के अवाम के वज़ीर-ए-आज़म को आपने कैसे निकाल दिया? और इस प्रोटेस्ट में निकाला तो उसने बेटे से तनख्वाह वसूल नहीं की। खुददार कौमें जो होती हैं, गैरतमंद कौमें जो होती हैं, वो ये सवाल पूछती नहीं है, उनके जवाब हासिल करके रहती हैं। थोड़ा सा इस बात का मुझे अफसोस है और अफसोस रहेगा और रहना भी चाहिए कि एक शख्स जो अपना पाकिस्तान के लिए इतना दिन रात काम कर रहा था, तामीर कर रहा था इस मुल्क की, उस बंदे के साथ ऐसा सलूक किया तो क्यों किया? तो और वो शख्स जो जिसने एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया बल्कि वादा खिलाफियाँ की हैं, उस शख्स की वजह से आज उनका ये हाल है। और मैं तो समझता हूँ कि रियासत एक माँ होती है, माँ, और फिर माँ को अपने बच्चों की बड़ी फिक्र होती है। और बच्चे अगर उनकी सर पे छत ना हो, वो बेचारे इस तरह से बच्चे घूम फिर रहे हों और बगैर छत के घूम फिर रहे हों, कोई सहारा ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, तो फिर क्या माँ को फिक्र नहीं होगी? क्या माँ चैन से जी सकेगी? उसको सुख का सांस आएगा? मैं तो इस तरह देखता हूँ अपने मुल्क को, कौम को और अपनी रियासत को, लेकिन रियासत के सतूनों ने भी कोई रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया।
ستون بھی ذمہ دار ہیں، میں بھی، مجھ جیسے لوگ بھی ذمہ دار ہیں، اور آپ بھی ذمہ دار ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.